ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ આઠમાં આપણે પાઠ ચલાવતા હતા. કયો પાઠ? પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. એ પાઠમાં છે ને આપણે અધૂરો પાઠ હતો 22 નંબરના પેજથી. એ પાઠ અધૂરો તો આપણે હવે એ પાઠની શરૂઆત કરીશું કે इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. એના પછીના 6 વર્ષો સુધી इलाहाबादની नगरपालिकाમાં એ કંઈ ના કંઈક रूपથી એમાં જોડાયેલા જ रहता था. मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट परिचित कराया. હું સમજી શકું છું કે આ અનુભવો દરમિયાન શાસ્ત્રીજીનું વ્યક્તિત્વ અને ચિંતન એ નાગરિકોની સમસ્યાઓ હતી, જે મુસીબતો હતી, એનાથી નજીકથી એમને પરિચય કરાવવામાં આવ્યા હતા. અનેક પ્રાસ ગ્રામીણ જીવન કા અનુભવ થા. અનેક પ્રાસ મતલબ અનેક જગ્યાઓમાં એમનું ગ્રામીણ ગામડાઓમાં જીવનમાં એમને અનુભવો થયા હતા. अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. એના પછી એમને इलाहाबादના नगरपालिकाમાં जनसेवाને સાથે પણ અનુભવ એમને જોડી દીધો હતો. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे. એના આધારભૂતથી એ છે ને ઘણા બધા દેશના નાના મોટા કાર્યો અને સમસ્યાઓને શું કર્યું હતું, એમને પૂર્ણ કરી હતી. એટલે એમને વ્યવહારિક પ્રશ્નોમાં ખૂબ જ સારો અનુભવ એવો થઈ ગયો હતો. कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए. એટલે એમના કાર્યો પ્રતિ જે એમનો નિષ્ઠા, મહેનત હતી, લાગણી હતી, ક્ષમતા હતી, એના કારણે 1937માં એ સંયુક્ત પ્રાંતીય વ્યવસ્થાપિકાના સભાના માટે એમને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. सही मायने में यही से शास्त्री जी के सदस्य जीवन की शुरुआत हुई. હવે સાચી રીતે જ શાસ્ત્રીજીના સંસદીય જીવનની શરૂઆત થાય છે. जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ. એનું સમાપન છે ક્યાં સુધી થયું હતું? દેશના પ્રધાનમંત્રી પદ સુધી પહોંચવા સુધી થયું હતું. શાસ્ત્રી જી को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी. શાસ્ત્રીજીને શું હતું? રાજનીતિ માટે બહુ જ ઊંડી પહેચાન હતી, જાણકારી હતી એમને. श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था. श्रीमती इंदिरा गांधी હતા એમને શું માનતા હતા? રાજનીતિક ગુરુ માનતા. એમને એવું કહ્યું હતું કે उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ. એટલે કે એમના માર્ગદર્શનના આધારે જ એમનું इंदिरा गांधीનું राजनीतिक जीवनની શરૂઆત થઈ હતી. देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे. દેશની આઝાદીના પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં તથા કેન્દ્રના શાસ્ત્રીમાં પણ એ ભિન્ન અલગ અલગ રીતે પદોમાં જોડાયેલા રહેલા હતા. उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया. उत्तर प्रदेश में એમને શું બનાવવામાં આવ્યા હતા? गृहमंत्री બનાવવામાં આવ્યા હતા. बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए. પછી શું કરવામાં આવે છે? પંડિત નહેરુ હતા એના अनुरोधમાં એમના નીચે કેન્દ્રમાં આવી જાય છે, એમના હાથ નીચે આવી જાય છે. केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले. એ કેન્દ્રના લીધે એમને રેલગાડી, પરિવહનનું, સંચારણ, વાણિજ્યના ઉદ્યોગમાં, ગૃહ જેવા મહત્વપૂર્ણ જે મંત્રાલયો હતા એમાં શું કર્યું હતું? એમને મંત્રીનું પદ સંભાળ્યું હતું. इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए उदाहरण है. એટલે શું કર્યું? શાસ્ત્રીજીએ ઘણા બધા સારા એવા કાર્યો કર્યા હતા, પરિણામ આપ્યા હતા, પ્રમાણ મળ્યા હતા એમને. એટલે આપણા દેશ માટે એક બહુ મોટું उदाहरण છે. अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था. આ ઘણા બધા ઉદાહરણો આપ્યા છે વ્યવહારિક જીવનમાં. એટલે બધા પ્રકારની ઔપચારિકતાઓમાં એમનું શું હતું? મહત્ત્વ હતું. વે અપને કો કભી અપને પદ કે કારણ ઊંચા નહીં માનતે. ક્યારેય એ પોતાના પદના કારણે એમને ઊંચું અભિમાન નહોતું કે બહુ મોટા માનતા નહોતા. ઉનકી બડી સીધી સાધારણ ધારણા થી કે મેં તો લોકપ્રિયતા મિલી હે. એમને બહુ જ સાદી સાધારણ હતી કે એમને લોકપ્રિયતા એટલે લોકપ્રેમ મળે, સાથે સાથે દેશની પણ લોકપ્રેમતા એમને મળતી હતી, લોકોનો પ્રેમ મળતો હતો.
इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार। એટલે શું કરે, આ લોકપ્રિયતાના કારણે જ પંડિત નેહરુના મૃત્યુ પછી એમને દેશના પ્રધાનમંત્રીના રૂપમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા। લોકપ્રિયતા એટલે લોકોનો પ્રેમ એમને પ્રાપ્ત થયો હતો। એક બહુ મોટું ઉદાહરણ છે। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शास्त्री जी ने सामने एमનું उदाहरण શું હતું? बिल्कुल स्पष्ट હતું। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। एમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ધૂંધળુપણ અને કોઈ ભટકાવપણ હતો નહીં। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। એ બહુ આપણા દેશના બહુ महत्वपूर्ण पदों पर रह चुक्या હતા। और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। અને આ પદ પર રહેતા એમને સ્વાભાવિક રૂપમાં પણ અધિકારોનું માન સન્માન મળ્યું હતું। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, परंतु ये हमेशा धीरजताથી જ काम लेता હતા तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह से दी। અને अधिकारों સાથે શું કર્તવ્યપૂર્ણ જવાબ આપતા હતા। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतनी अधिक लोकप्रिय भी हो सके। એટલે જ બધા માટે આ શાસ્ત્રીજી બહુ જ લોકપ્રિય બન્યા હતા કે એમનું વર્તન બધાની સાથે પ્રેમ ભર્યું હતું। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त કર્યા। એમને છે ને અલીગઢના મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલયમાં કઈ તારીખે સમારોહ હતો કે 19 ડિસેમ્બરે 1964ના જે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા એમને પોતાના વિચારોને વ્યક્ત કર્યા હતા કે આપકે ભવિષ્ય की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, તમારા ભવિષ્યની ધ્યેય પ્રાપ્તિ ગમે તે કંઈ પણ હોય, પણ आप में से उसे प्रत्येक को यह सोचना चाहिए। परंतु दरेक जणे એવું વિચારવું જોઈએ कि आप सबसे पहले देश के नागरिक के આપણે બધા કરતાં પહેલાં આપણે શું છીએ? એક દેશના નાગરિક છીએ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता। એટલે આ વાક્ય દ્વારા આપણને એક પ્રદત્ત આપણને અધિકાર આપે છે। એટલે કે મતલબ પ્રદત્ત यानी दिया हुआ, એટલે આપણને આપેલો એ અધિકાર છે। लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ होता है। એના કારણે આપણને ઘણા કર્તવ્યોનો ભાર પણ હોય છે, जिससे समझना चाहिए। એટલે એનાથી આપણે સમજવું જોઈએ કે हमारा देश प्रजातांत्रिक है। આપણો દેશ શું છે? પ્રજાતાંત્રિક દેશ છે। जो निजी स्वतंत्रता देता है, એ પોતાની જાતને સ્વતંत्रता अलग જ स्वतंत्र આપે છે। लेकिन इस स्वतंत्र का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। परंतु આપણને જે સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? વ્યવસ્થિત રીતે સમાજના કાર્યોમાં સ્વેચ્છાએ લગાયા ગયેલા પ્રતિબંધોમાં જે પણ પ્રતિબંધો આપ્યા છે એની તરફ હોવો જોઈએ। એનો કોઈ પણ દુરુપયોગ કરવો જોઈએ नहीं। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण की बात शास्त्री जी ने कही थी। અધિકારો અને કર્તવ્યોનું આત્મસંયમ આપતા એમણે બહુ જ મોટી એક મહત્વપૂર્ણની વાત કરી હતી શાસ્ત્રીજીએ કે जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। એને એ વાત છે આપણે આજે પણ યાદ રાખવાની જરૂરત છે। તો હવે આપણે શબ્દાર્થમાં જોઈએ તો દાયિત્વ यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा अनासक्त, समर्पण यानी सौंपना या अर्पित होना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, आस्था यानी श्रद्धा या विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकारी यानी वारसो, आह्वान यानी ललकार या चुनौती, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य या अग्रिग्रमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत यानी विद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। तो विद्यार्थी मित्रों, आ शब्दार्थ जोया। हवे तमे तमारा अभ्यासमां प्रश्न 1 कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। एमां पहलो प्रश्न छे, आ प्रश्न छे, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शू कहेवामां आवे छे कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। उसके प्रति वे बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वे जो कर्म करते थे उसके फल की तरफ उनका कभी ध्यान नहीं रहता था। इस प्रकार बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने के कारण उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। पछी आ प्रश्न 2 है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो शास्त्री जी में विनम्रता थी, सादगी और सरलता एक विशिष्ट आकर्षण पैदा करती थी।
वास्तव में गांधी जी विनम्रता, सादगी और सरलता की साक्षात मूर्ति थे। ये गुण शास्त्री जी के व्यक्तित्व में भी समाविष्ट थे। वे गांधी जी की तरह सादगी भरा जीवन जीते थे। अहंकार का उनमें नामो निशान न था। इस तरह गांधी जी के कई गुण शास्त्री जी के व्यक्तित्व में पाए जाते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। પછી પ્રશ્ન 3 છે કે શાસ્ત્રી जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में या विचारों में ही नहीं प्रकट होते थे, बल्कि उनको देखने से भी उनका एहसास हो जाता था। वे जो कुछ कहते थे वह करते थे। वे केवल देश हित के लिए कार्य करते थे। इसीलिए देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। एना पछी तमारा प्रश्न आगळ आवे छे। ये प्रश्न शू है कि अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोच और बताइए। आ प्रश्न तमारे जाते लखवानो छे विद्यार्थी मित्रों, तमारा जाते लखवानो छे विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न 2 तमारा अनुमान लखवाना छे, आमां तमारा मनना विचार लखवाना छे। पछी प्रश्न 3 जुओ। प्रश्न 3 में लख्युं छे कि संवाद को आगे बढ़ाइए, 8 से 10 प्रश्नों और जवाब हो। आ संवाद है एने शू करवानुं छे, आगळ वधारवानुं छे अने प्रश्न ने जवाब करवाना छे। और रिया है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील कहे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, 69 में हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पछी सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया, पछी आपणे जोईए कि रिया, गांधी जी ने इंग्लैंड में कौन कौन सी पदवी प्राप्त की थी? प्रश्न बनाइए छे आपणे कि गांधी जी ने इंग्लैंड में कौन कौन सी पदवी प्राप्त की थी। पछी सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड में बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की थी। जवाब सुनील के छे। पछी रिया, गांधी जी ने अन्याय के विरोध में सत्य और अहिंसा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सुनील कहे गांधी जी ने अन्याय और विरोध में सत्य और अहिंसा के साथ सत्याग्रह आंदोलन का शुरू किया था। एना पछी जुओ तो रिया कहे छे कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? तो सुनील कहे छे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की। पछी रिया कहे छे कि गांधी जी ने अहमदाबाद में कौन से आश्रम में स्थापना की थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद में 25 मई 1915 में दीन कोचरब आश्रम की स्थापना की। फिर रिया कहती है कि गांधी जी 1 वर्ष के बाद अपना आश्रम कहाँ ले गए? तो सुनील कहे छे कि गांधी जी 1 वर्ष के बाद अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे ले गए। फिर रिया पूछती है कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने किसके विरोध में आंदोलन शुरू किया? तो सुनील बताता है कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। फिर रिया, गांधी जी के नेतृत्व में कौन से सत्याग्रह हुए? तो सुनील बताता है कि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध असहकार आंदोलन जैसे सत्याग्रह हुए। फिर रिया, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? तो सुनील बताता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ो के लिए की थी। नमक कानून तोड़ो के लिए की थी। फिर रिया बताती है कि गांधी जी ने सन 1942 में कौन सा सूत्र दिया? तो गांधी जी ने सन 1942 में देश को करेंगे या मरेंगे सूत्र दिया। कौन सा सूत्र दिया था? करेंगे या मरेंगे। फिर रिया, गांधी जी का निधन कब हुआ? तो गांधी जी का निधन कब हुआ था विद्यार्थी मित्रों? गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था। 1948 में 30મી જાન્યુઆરી 1948 રોજ આપણા ગાંધીજીનું મૃત્યુ થયું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો। એના પછી તમારો અભ્યાસ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। ना प्रश्न 4 है विद्यार्थी मित्रों, खास सांभळो। प्रश्न 4 में शू है कि निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन कीजिए। तो तमारे शू करवानुं छे? आनुं अनुलेखन करवानुं छे सारा अक्षर में। प्रश्न 4 तमारे अनुलेखन करवानुं
છે। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાયમાં તમે જુઓ તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, પ્રશ્ન 2, 4 સુધી છે। તો આપણે એ સ્વાધ્યાય આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।